السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عائشہ انصاری، میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں ماوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا سندھ حکومت بلڈر مافیا کو NRO دینے جا رہی ہے؟ جرمانہ بھریں اور غیر قانونی رہائشی عمارت کو ریگولر کروائیں۔ سندھ حکومت نے بلڈر مافیا کو بڑی رعایت دینے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے خلاف ضابطہ تعمیرات ریگولر کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک مقررہ عرصے میں تمام غیر تجارتی تعمیرات کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ سندھ حکومت فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک کمیشن بنائے گی۔ رہائشی عمارتوں کو جرمانہ کر کے ریگولرائز کرایا جائے گا۔ خلاف ضابطہ تعمیرات کی اجازت دینے والوں کو سزاؤں کا طریقہ کار طے ہوگا۔ سندھ اسمبلی سے منظوری کے بعد آرڈیننس گورنر سندھ کو بھیجا جائے گا۔ ناظرین، گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور میں لڑکی کی ماڈلنگ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پنجاب پولیس نے ماڈلنگ کروانے والی کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں لڑکی کی ماڈلنگ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ سکھ کمیونٹی نے اپنے مقدس مقام پر ماڈلنگ پر تنقید کی ہے۔ پنجاب پولیس نے مقدس مقام پر ماڈلنگ کروانے والی کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ گردوارہ کرتارپور کے احاطے میں ماڈلنگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سخت نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی۔ ان کا کہنا تھا، واقعے سے سکھ برادری کے جذبات مجروح ہونے پر دکھ ہے۔ واقعے کی جامع تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ کارروائی ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور لارڈ میئر برمنگھم چودھری افضل کی دعوت پر لارڈ میئر پارلر پہنچے۔ لارڈ میئر، کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ اوورسیز پاکستانی برطانیہ کی طرح پاکستان میں بھی اپنی بہترین خدمات سر انجام دیں۔ اوورسیز کو ملک کے اعلیٰ ایوانوں میں براہ راست نمائندگی دی جائے تاکہ ملک میں درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ کووڈ-19 کی سفری پابندیوں کے بعد گورنر پنجاب کا یہ پہلا دورہ تھا برطانیہ کا، جس دوران وہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے برمنگھم لارڈ میئر چودھری افضل کی دعوت پر لارڈ میئر پارلر کا دورہ کیا۔ لارڈ میئر، کونسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بعد میں لارڈ میئر برمنگھم چودھری افضل نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں پرتقل لفظ ظہرانہ دیا، جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ برطانیہ نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ آج ہماری کمیونٹی کے کئی اہم رہنما ہاؤس آف لارڈ، میئرز، ممبر آف پارلیمنٹ سمیت حکومتی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ بعد میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور لارڈ میئر چودھری محمد افضل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہماری کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں بھی اپنی خدمات اس طرح دے جیسے برطانیہ میں دیتے ہیں، اور ووٹنگ رائٹس کے ساتھ ساتھ ووٹ لینے کا حق بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ جو ہیں باہر رہنے والے لوگ $30 بلین سالانہ پاکستان کو بھیجتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیسٹ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھیں، تاکہ اپنے مسائل ان کے جو ہیں ان کو مؤثر طریقے سے پیش کر سکیں۔ میں ینگر جنریشن سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی جو سیاست ہے اس میں حصہ لیں، تو اس سے آپ ملک کی بھی خدمت کر سکیں گے، اپنی کمیونٹی کی یہاں کر خدمت کریں گے۔ اس دوران لارڈ میئر نے گورنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چودھری سرور ہمارے لیے سیاست میں رول ماڈل ہیں۔ برطانیہ سے جا کر اپنے ملک میں کامیاب سیاست کی بلکہ عوام کی خدمت بھی کی۔ I am also very proud of my nephew Anas Sarwar, who has made lot of progress in Labour Party. He is the chairman, the leader of Scottish Labour Party, and he has done very well. And the credit also goes to Chaudhry Sarwar Sahab, because when he joined politics, he was a very senior politician in Scotland. He was also chair of the Scottish Committee in the House of Commons, and now his son is actually the leader of Scottish Labour Party. برطانیہ میں شدید سردی اور برف باری کے باوجود گلاسکو سے راجہ حنیف، کیبنٹ ممبر وسیم ظفر، عادل منظور، راجہ ظفر معروف، کونسلر ظفر، حاجی نجیب سمیت کئی اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اوورسیز کمیونٹی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ملک کو $30 ملین زر مبادلہ بیچتے ہیں۔ ان کو ملک کے اعلیٰ ایوانوں میں براہ راست نمائندگی دی جائے تاکہ درپیش مسائل حل کر سکیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ شوکت خانم کینسر اسپتال کراچی کی تعمیر کے لیے لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے انویسٹمنٹ ایڈوائزر صاحبزادہ جہانگیر، PTI لندن کے صدر وحید الرحمان سمیت سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی رپورٹ۔
कराची में ज़ेरे तामीर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्कद की गई। इमरान खान चैरिटी अपील की तरफ से मुनक्कदा तकरीब में PTI के रहनुमा साहबजादा आमिर जहांगीर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के मुंतजमीन अशमा मुनीर और जहांजेब अली के मुताबिक अस्पताल की तामीर के लिए 35,000 पाउंड से जायद रकम इकट्ठी की गई। तकरीब में काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल, मियाँ वहीदुर रहमान, आमिर खान, मोहम्मद अजीम, राजा जाहिद, जैनब खान, मुश्ताक लाशारी, डिप्टी मेयर हौंसलो हिना मीर, मोहम्मद याद समेत दीगर रहनुमाओं और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। हाजरीन की जानब से शौकत खानम अस्पताल को भरपूर सपोर्ट करने के अज़म का इजहार किया गया। तकरीब में महफिल समा का भी एहतमाम किया गया था। कवाल पार्टी ने सूफियाना आरफाना कलाम पेश करके शुरकाए महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेरे रश्के कमर, झूले लाल और दीगर सूफी कलाम सुनकर शुरकाए महफिल ने खूब दाद दी। हाजरीन की फरमाइश पर भी कवाल पार्टी ने खूबसूरत सूफियाना कलाम पेश किया। तकरीब में मरूफ अदाकार अहमद भट्ट ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शुरका का कहना था इस कार्य खैर में कम्युनिटी ने भरपूर हिस्सा लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा हम वतनों को भरपूर सपोर्ट किया है और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज मैंने ऑर्गेनाइज करा था यहाँ पे लंदन में प्रोग्राम हम लोकल कम्युनिटी के लिए और हमने फंड रेज कराए। मोर देन 35,000 पाउंड हमने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए रेज कराए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए हैं एंड इट वाज अमेजिंग कवाली नाइट। everyone loved it. It's been a brilliant event today. Inshallah, we're going to help the Shaukat Khanum more, and I hope the Karachi project is going to be successful. We are going to pledge and we're going to do our own events to raise money for Imran Khan's mission. बहुत अच्छी कम्युनिटी ने जो है पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोग आए, आप लोगों ने विटनेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 40,000 पाउंड जो है यहाँ से रेज़ किए हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के इवेंट्स हम करते रहेंगे। थैंक यू आप लोगों का कि जो आप आए और आपने आके इस चैरिटी इवेंट को कवरेज दी। बस और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबसे ये दरख्वास्त है हमारी दुआ करें और आप भी अपने घर से बैठ के पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को फंड करें। इमरान खान कैंसर अपील यूके का ऑफिस मैनेज करता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज फंड रेजिंग डिनर था कराची हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया है। हम शुक्रगुजार हैं सबका। तकरीब के मुंतजमीन का कहना था कि इमरान खान चैरिटी अपील शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची की तामीर के लिए ऐसे मजीद प्रोग्राम्स का इनकाद करेगी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के हवाले से परवकार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी, नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा खान और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जियाले भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। यौम तासीस का केक काटते ही फजा जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम साबरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम ईस्ट लंदन में किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदारों के साथ साथ जियालों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फकार अली भुट्टो की खिदमात की बदौलत पाकिस्तान पहला इस्लामी जोहरी मुल्क बन चुका है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब तबके की नुमाइंदगी की और हमेशा पिसे हुए के हकूक की बात की। पाकिस्तान में जितनी भी तरक्की हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी ने कहा कि गुज़श्ता 54 साल से बहुत सी ताकतों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई। आज जो तब्दीली के नारे लगाए जा रहे हैं ये सब झूठ हैं। असल तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लाएगी। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन असद नवाज ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। आज से 54 साल पहले जिस पार्टी की बुनियाद रखी गई वो गरीब अवाम की पार्टी थी, जिसने हमेशा गरीबों के हकूक की बात की। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 54वीं सालगिरह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जिसने गरीब अवाम की बात की है, मज़दूरों की इनकी बातें की हैं। और हम ही समझते पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीबों के लिए काम करे, मज़दूरों के लिए काम करे। नाम ही पीपल्स पार्टी है तो वो अवामी पार्टी हो गई ना। तो दूसरी पार्टियों में आप देखेंगे कि कुछ फ़र्क नज़र आएगा। मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लोगों की हो गई या और, तो ये पीपल्स पार्टी में हर मज़हब और हर क्लास और हर चीज़ शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी पार्टी है कि जिसके साथ अवाम है, आज भी हैं, कल भी थे और इंशाअल्लाह
परसों भी रहेंगे। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां योम तासीस यहाँ मना रहे हैं। ये दिन हमारे लिए योम तजदीद अहद का दिन भी है और आज से 54 साल पहले जिस पार्टी की बुनियाद रखी गई वो गरीब की पार्टी थी, वो मज़दूर की पार्टी थी, वो महकूम की पार्टी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिन्होंने गरीब के लिए आवाज़ उठाई। जैसा कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तान के जाला मौजूद है आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि 54 साल हो गए हैं। बहुत सारी ताकतों ने अपने काम करने की कोशिश की, इस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। इस पार्टी के अंदर से और बहुत सारी पार्टियां बनाई गई लेकिन कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हो सकी और उसकी मेन वजह यह है क्योंकि ये हारी किसान की और मजदूर की बात करती है। तकरीब के आखिर में योम तासीस के हवाले से केक काटा गया। इस मौके पर फिजा जे भुट्टो के नारों से गूंजती रही। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ओहदेदार गुलाम मुस्तफ़ा, आरिफ मुगल, ख्वाजा मोइनुद्दीन सईद, यूनुस आफरीदी, खाकान मिर्जा, नदीम मेवावाला, उमर मेमन और दीगर ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर डटियाल आज़ाद कश्मीर के बासियों का एहतजाजी मुजाहरा। 3 हफ्ते पहले आज़ाद कश्मीर से अगवा होने वाली 11 साला बच्ची का सुराग न लगाने पर मीरपुर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अगवा होने वाली 11 साला यतीम बच्ची कमल मतलूब की तस्वीर और पोस्टर उठा रखे थे जिन पर इंसाफ दो के नारे दर्ज थे। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। डुडियाल आज़ाद कश्मीर के बासियों की एक बड़ी तादाद बर्मिंघम में आबाद है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल में डुडियाल आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 15 मुंतखब काउंसलर्स मौजूद हैं। डुडियाल या मीरपुर में कोई भी मसला हो तो इसकी आवाज़ बर्मिंघम से बुलंद होती है। 3 हफ्ते पहले एक 11 साला यतीम बच्ची कमल मतलूब को अगवा किया गया। इसकी तलाश शुरू की गई लेकिन वो ना मिल सकी। पुलिस को बर वक्त रिपोर्ट भी करवाई गई लेकिन पुलिस 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद इसका सुराग ना लगा सकी, जिसकी वजह से इलाका डुडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज में मौजूद शुरका ने 92 न्यूज़ को बताया कि मीरपुर की इंतज़ामिया इस बच्ची के अगवा के केस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए। हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से बर्मिंघम काउंसलेट के जरिए अपील है कि वो कमल मतलूब की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम करें। सब यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो आज़ाद कश्मीर डडियाल के मुकाम पे एक 11 साला बच्ची जिसका नाम कमल मतलूब है वो पिछले 2 हफ्ते से लापता है। अभी तक उसकी फैमिली को उसका कोई अता पता नहीं। Matloub has been missing and we want to be assured that she's safe. The difference between a normal picture, it's just a picture, but this picture stays in your soul. Justice for Khalid Matloub. बर्मिंघम काउंसलेट में कमल मतलूब के लिए जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद हमने ब्रेडफोर्ड करना है, मैनचेस्टर करना है, लंदन करना है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेंगे जिस वक्त तक कमल मतलूब बाजियाब नहीं होती। Kamal Matloub, she's an 11-year-old girl missing. She's been missing for 3 weeks and we're very angry that nothing much is being done. कश्मीरी यूनियन डियास्पोरा की तरफ से हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज़िला मीरपुर की इंतज़ामिया से पुरज़ोर अल्फाज में मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस मासूम बच्ची को बाजियाब कराने के लिए एक्शन लें। बर्मिंघम में कश्मीर के बासियों ने अपना पैगाम आला हुक्काम तक पहुँचाने की गर्ज से पाकिस्तान काउंसलेट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बर्मिंघम और मैनचेस्टर में मुकीम फैमिलीज ने अपने बच्चों समेत शिरकत करके सर्दी के सख्त मौसम में कमल मतलूब को इंसाफ दो जैसे नारे लगाए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कमल मतलूब को बाजियाब करो, कमल मतलूब को बाजियाब करो, कमल मतलूब को बाजियाब करो। आला हुक्काम को इसका नोटिस लेना चाहिए और कमल का सुराग लगाकर इसको बाजियाब कराया जाए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जस्टिस फॉर कमल मतलूब, जस्टिस फॉर कमल मतलूब, जस्टिस फॉर कमल मतलूब। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ बरतानवी फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को बेहतरीन समाजी खदमात पर गवर्नर पंजाब अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर के दरबार हॉल में मुनाकिदा पुरवकार तकरीब में चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने अवार्ड वसूल किया। तकरीब का अहवाल जानिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
दुनिया भर के 22 ममालिक से ज़ायद समाजी और फलाही कामों में मसरूफ़ अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की खिदमात के एतराफ़ में पंजाब का सबसे बड़ा गवर्नर अवार्ड गुज़िश्ता दिनों दे दिया गया। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की मेज़बानी में होने वाली इस पुरवकार तकरीब में समाजी और फलाही काम करने वाली तंजीमों के रहनुमाओं, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब में गवर्नर पंजाब की अहलिया ने सरवर फाउंडेशन की समाजी कामों के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई और अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि आंखों के इलाज के हवाले से जिस तरह अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर में मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है, इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। मेहमान हसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरे लिए भी एजाज की बात है कि मैं ऐसी तंजीम को गवर्नर अवार्ड दे रहा हूँ जिसकी फलाही हिदमात का एतराफ़ दीगर ममालिक में भी किया जा रहा है। इस मौका पर अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट इंटरनेशनल के सदर अब्दुल मजीद को भी गवर्नर पंजाब अवार्ड दिया गया। अवार्ड वसूल करने के बाद चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा, गवर्नर पंजाब की जानिब से समाजी हिदमात का एतराफ़ किसी एजाज से कम नहीं है। हमारी तंजीम बिला तफरीक इंसानी फलाही हिदमात का सफ़र कई दहाइयों से जारी रखे हुए है और ऐसी इज्जत अफजाई के बाद हिदमत के जज्बे को मजीद तक़वियत मिलती है। तकरीब में सुंदस फाउंडेशन के यासिन खान, तजम्मुल करमानी, इफ्तिखार कैसर, ताहिर चौधरी, आमिर बाजवा, आमिर मलिक समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली फलाही तंजीमों की हिदमात को सराहा। इस मौका पर हाज़रीन की ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम किया गया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। ईस्ट लंदन के इलाके में शेर सुखन और मौसीकी के सुरों से सजी महफिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। फोक गुलकार शमील चौहान, ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर फराज अहमद ने खूबसूरत नगमे और गज़लें पेश करके खूब दाद समेटी। नौजवान शायर आमिर अमीर ने अपना कलाम सुनाकर गोया महफिल ही लूट ली। अदबी और सकाफती रंगों से सजी तकरीब का मजीद अहवाल सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन के इलाके एल्फिड में शेर व शायरी और गज़ल के हवाले से म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। RRR प्रोडक्शन के फराज अहमद की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर खूबसूरत तकरीब से लुत्फ उठाने के लिए खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एलिंग के मेयर चौधरी मुनीर अहमद, IBPC के चेयरमैन रिजवान सुलैरिया, PTI रहनुमा आमिर खान समेत शेर व अदब और मौसीकी से लगाव रखने वाले पुरस्कारों ने शिरकत करके शोरा और फनकारों की खूब पजीराई की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मशहूर फोक गुलकार शुमैल चौहान ने अपने फन का मुजाहरा मशहूर गजलों के साथ किया जिन्हें सुनकर हाजरीन सर धुनते रहे। जगजीत सिंह के ऑफिशियल गिटारिस्ट ने गिटार बजाकर उनका साथ दिया। गिटार की धुन पर शुरकाए महफिल झूमने लगे। मशहूर शायर आमिर अमीर ने खूबसूरत शायरी पेश करके गोया महफिल ही लूट ली। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं इस मौका पर हाजरीन महफिल का कहना था कि इस किस्म के इवेंट्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देते हैं। मेयर एलिंग मुनीर अहमद, माहिर कानून दान रिजवान सुलैरिया, दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के राना दीन मोहम्मद, माजिद खान, राबिया राहील और दीगर शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम लोगों को आपस में लाने में मदद देते हैं। इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए और कम्युनिटी में इत्तेहाद पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें फैमिली की एंटरटेन भी होती है और लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका भी मिलता है। इसके लिए मैं RRR इवेंट मैनेजमेंट और फराज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आज बड़ा कामयाब प्रोग्राम पेश किया। लोग बहुत परेशान थे, बहुत अरसे से कोविड की वजह से लोग घरों में बैठे हुए थे, तो लोगों को मौका मिला है, वो घरों से बाहर आए हैं, फैमिलीज के साथ निकले हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट ब्रदर फराज हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट। ज़बरदस्त इवेंट है आज का। मैं समझता हूँ कि इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद है और उसके साथ साथ बड़ी अच्छी गज़लें, खाना बहुत अच्छा था, ओवरऑल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बच्चे भी मौजूद थे। सो इट्स अ वंडरफुल इवेंट। इस तरह के जो छोटे छोटे इवेंट है वो कम्युनिटी को डेफिनेटली एक दूसरे के पास लेके आते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग घरों में मुनक़द हो गए थे। तो अब वो जब जैसे ही ख़त्म हुआ है तो हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए जिसमें सारी फैमिली, बच्चे वगैरह सारे जमा हो और एंजॉय करें। मैं ये समझता हूँ कि दियारे गैर में रहते हुए ऐसी महफिलों का इनकाद होना चाहिए और फैमिली गेट टुगेदर होना चाहिए ताकि हमारी नई आने वाली जनरेशन को पाकिस्तान के कल्चर और तहजीब का पता चल सके। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन के बाद ऐसा फंक्शन हुआ है और यहाँ पे लोगों से मिलने का भी मौका मिला है कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टाइम के बाद। हम समझते हैं कि जो इन्होंने प्रोग्राम कराना शुरू किया है कम्युनिटी आन के फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत गेट टुगेदर होनी चाहिए। पाकिस्तान का हमारा यहाँ पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान, हम इसलिए सब इकट्ठे होकर ये एंजॉय करते हैं। लॉकडाउन के बाद ये सारा कम्युनिटी इवेंट बनाया है उन्होंने,
माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है, फैमिली के लिए फैमिली ओरिएंटेड सारा अच्छा बनाया है। तकरीब में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने शेर व अदब और मौसीकी की महफिल का खूब लुत्फ उठाया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाक फेडरेशन इटली की जानिब से विचेंजा में तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं समेत कम्यूनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने के अज़्म का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर इरशाद। विचेंजा में तहरीक कश्मीर इटली के नायब सदर चौधरी बाबर वराइज की जानब से पाक फेडरेशन इटली और कम्यूनिटी के एजाज में बावकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाक फेडरेशन इटली के सदर चौधरी बशीर उमरा, जनरल सेक्रेटरी आसिफ रजा, साबिक चेयरमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया, तहरीक कश्मीर इटली के सदर महमूद शरीफ, पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली के सरपरस्त आला चौधरी शहजाद साहिरी और दीगर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। पाक फेडरेशन इटली की जानब से मुनक्कद की गई तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर नात ख़्वां हजरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए पाक फेडरेशन इटली के कायदीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इटली के शहर नेपल्स में कॉन्सुलेट के क़याम का खैर मकदम किया। कम्यूनिटी से खिताब करते हुए रहनुमाओं का मजीद कहना था कि इटली की तमाम तंजीमों को फेडरेशन के साथ मुंसलिक करके कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जदोजहद की जाएगी। यकीन दिलाया कि हम पाक फेडरेशन के साथ काम करेंगे और पाकिस्तानी के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हम पाक फेडरेशन इटली की क़यादत और तरीके कश्मीर इटली की क़यादत को विचेंजा में खुशामदीद कहते हैं और उनको अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाते हैं। मैं आज पाक फेडरेशन इटली की तमाम क़यादत का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे शहर विचेंजा में तशरीफ़ लाए और साथ विचेंजा कम्यूनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि वो सब इधर तशरीफ़ लाए और हम पाक फेडरेशन के साथ शाना बशाना है। आज हम मौजूद हैं विचेंजा में और हम शुक्रगुजार हैं विचेंजा कम्युनिटी का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पाक फेडरेशन इटली इंशाल्लाह पूरे इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतहर्रिक करेगी और सब शहरों में हम जाएंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए जहाँ तक कोशिश हो सके करेंगे, इटली में भी और पाकिस्तान में भी। साथ साथ हम इमरान खान साहब के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इटली के लिए हमें कॉन्सुलेट का तोहफा दिया है। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि ओवरसीज कम्युनिटी इटली के पाकिस्तान में तालवी सफारत खाने में मौजूद मसाइल पर भी हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, इटली। सदर आरिफ अलवी ने अशकाबाद में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इस दौरान इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सदर आरिफ अलवी ने अशकाबाद में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इस दौरान इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने, तिजारत, मईशत, इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए खित्ते और बिलखुसूस इस्लामी ममालिक को मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। खित्ते को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सदर ने कश्मीर पर तुर्की के उसूली मौक़िफ़ पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल हाईवे को फ़ाल बनाने और इसी रूट पर रेलवे लाइन को बहाल करने की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि जंगीज़ और कॉरिडोर को भी बहुत अहमियत देते हैं, जो हमारे मुल्क और हमारे खित्ते के दरमियान बराह रास्त हाईवे का राब्ता कायम करेगा, जिससे दोनों मुल्कों के कारोबारी लोग मुस्तफीद होंगे और मुल्क की मईशत मजबूत होगी। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। दुबई की आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 के मरकजी स्टेज जूबली पवेलियन में पाकिस्तानी फनकारों ने धूम मचा दी। नए और पुराने गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद। दुबई की आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 के मरकजी स्टेज जूबली पवेलियन में पाकिस्तानी फनकारों ने धूम मचा दी। पाकिस्तान के मारूफ सिंगर मीशा शफी ने अपनी आवाज का जादू जगाया तो शायकीन झूम उठे। मीशा शफी ने नाजिया हसन का गाना बूम बूम गाया तो सबके दिल ही जीत लिए। मुनीबा मजारी और मारिया ओनेरा ने भी मीशा शफी का साथ दिया। इसके साथ साथ मुनीबा मजारी ने मोटिवेशनल स्पीच देकर हाजरीन को कुछ ना कुछ करने का जज्बा दिया। यंग सिंगर मारिया ओनेरा की परफॉर्मेंस की सूरत में पाकिस्तान की एक और आवाज भी मुतारिफ कराई गई।
ترکی میں ہزاروں ڈاکٹرز نے سرکاری ملازمت ترک کر دی۔ سن 2020 میں 1000 سے زائد ڈینٹسٹ اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ اب تک 8000 ڈاکٹرز مرکز صحت چھوڑ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترکش میڈیکل ایسوسی ایشن نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران پبلک سیکٹر کے صحت کے اداروں میں ملازمت چھوڑنے والے ڈاکٹروں کی تعداد کے بارے میں چونکا دینے والی رپورٹ پیش کی ہے، جس کے مطابق ترک وزارت صحت کے زیر انتظام چلنے والے مراکز صحت سے تقریباً 8000 ڈاکٹر استعفیٰ دے چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز مختلف شعبوں میں طبی خدمات فراہم کر رہے تھے۔ مستعفی ہونے والے ڈاکٹروں میں سے 10% طبی مراکز، کلینکس اور وزارت صحت سے منسلک ہسپتالوں میں کام کرنے والے دندان ساز تھے۔ ڈینٹل یونین کے سربراہ کے مطابق صرف 2020 کے آخری سال میں 1000 سے زائد ڈینٹسٹ نے استعفیٰ دینے کے بعد پبلک سیکٹر میں اپنی خدمات ترک کر دی ہیں، جبکہ ڈاکٹروں کے استعفے ابھی تک جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ترکی کرنسی کی قیمت میں کمی، افراط زر اور مہنگائی میں اضافے کے باعث ترک ڈاکٹر ملازمتیں ترک کر کے دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کے زیر اہتمام نویں تعلیمی ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں طلباء و طالبات کے ساتھ میمن برادری کی کاروباری و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ عدیل ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کی جانب سے سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں 9ویں تعلیمی ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب میں مقیم میمن برادری کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان سمیت 400 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے صدر ماسا شعیب سکندر، طیب مسوانی، جوید اشرف خیرانی، محمد سراج لالا، صادق سراٹھیا، عمران امین اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ایوارڈ کے لیے منتخب بچوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ بچے مستقبل کے معمار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ان کے کیریئر پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماسا ہر سال اپنی برادری کے ہونہار بچوں کے لیے تعلیمی ایوارڈ کا انعقاد کرتا آ رہا ہے۔ تقریب سے مسز ارم شعیب سکندر اور ڈاکٹر شائستہ خالد نے بھی تعلیم کی اہمیت اور دور حاضر کے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ معزز مہمانوں نے نمایاں پوزیشن ہولڈر، 100 سے زائد پرائمری، سیکنڈری، او اینڈ اے لیول، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہولڈرز اور حافظ قرآن طلباء و طالبات میں شیلڈز، ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر طلباء اور ان کے والدین کے چہروں پر خوشی قابل دید تھی۔ تقریب میں ماہر معاشیات ڈاکٹر محمد چھاپڑ والا نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور دیار غیر میں بچوں کی حوصلہ افزائی پر ماسا ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے آخر میں قونصل جنرل پاکستان خالد مجید کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ سعودی عرب میں حلقہ فکر و فن کی جانب سے شعر و شاعری کے حوالے سے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں شاعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا اور خوب داد وصول کی۔ ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ۔ پرمن کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، بجلیوں کے گرنے میں دیر اتنی لگتی ہے، اور ایک دیا جلانے میں کس قدر جھمیلے ہیں، ایک دیا جلانے میں کس قدر جھمیلے ہیں، ایک مکان کو جلنے میں۔ سعودی عرب میں حلقہ فکر و فن کی جانب سے شعر و شاعری کے حوالے سے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا اور خوب داد وصول کی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں حلقہ فکر و فن کے رکن ظفر اقبال کی میزبانی میں منعقدہ ادبی نشست میں شعراء کرام اور ادیبوں کے علاوہ صحافی بھی شریک تھے، جن کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں حلقہ فکر و فن گزشتہ 4 دہائیوں سے ادب کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ شرکاء نے کہا، ادب ہمیں الفاظ کی ادائیگی اور سلیقہ سکھاتا ہے اور جذبات کو زبان ملتی ہے۔ اب جدا ہوں تو جدا مجھے رہنے دو، جھیلنے دو یہ سختیاں، درد محبت سہنے دو، کوچہ ہستی سے بہت دور نکل گیا، کوچہ ہستی سے بہت دور نکل گیا ہوں، اے ہم نشینوں مجھے میری موج میں رہنے دو۔ پاکستان میں ادب کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس کی سرپرستی کرے اور ایسے مواقع فراہم کرے جس سے ادب ترقی کرے اور معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکے۔ ادبی نشست میں حلقہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودھری، محمود احمد باجوہ، مخدوم امین تاجر، وقار نسیم وامک، ظفر اقبال، قلب حسین نے اپنا کلام پیش کیا اور کہا کہ شعر و شاعری کی یہ نشستیں محبتوں کو فروغ دیتی آ رہی ہیں۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔
रियाद सीजन के तहत साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है, जो मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में पहली मरतबा मुनक़िद हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी के आलमी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक के साइबर सिक्योरिटी के अलावा प्रोग्रामिंग और ड्रोन्स के माहिरीन भी शरीक हैं, जो अपने अपने शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराएंगे। सऊदी इदारा बराए साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग और ड्रोन्स के सरबराह फैसल बिन सऊद अल खमीसी ने कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के हवाले से अब तक 9 मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन की खिदमात हासिल करके नौजवानों की तरबियत की है। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।